students, welcome to the biology world. In previous video, we discussed about the cell theory, plasma membrane and cell wall. Now, today we discuss about the powerhouse of the cell and we know that is the mitochondria. It is totally revision lecture and mitochondria is the main organelle of our body. You have to ask in examination, describe the powerhouse of the cell or describe the mitochondria in detail. So you have to write the mitochondria with the suitable diagram. Now we discuss about the mitochondria. First, we start history of mitochondria. It is discovered by mitochondria is discovered by Colliker in flight muscles of insects. In flight muscles of इंसेक्ट्स के जो फ्लाइट मसल्स थे उसमें सबसे पहले कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, हमारे बॉडी का वो पावर हाउस है। तो जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा एटीपी यूज होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट्स होता है। सो साइज की बात करें so 0.2 to 1.0 in diameter and 1.0 to 4.1 in micrometer in length. It is size of mitochondria. Now we observe and we study the detailed structure of mitochondria. So mitochondria is membrane bound organelles. It have two membranes, outer membranes and inner membranes. I have already drew the mitochondria. We saw that it is outer membrane of mitochondria and it is inner membrane of mitochondria. Outer and inner membrane of mitochondria. So it is two layered. So it is known as bioblast. Now we see that outer membrane is continuous and outer membrane is permeable for some proteins. Inner membrane has we saw that it is discontinuous. Some place of inner membrane it is folds like structure and it is known as cristae. कहीं जगह पे इनर मेम्ब्रेन है वहां पे हमको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वी शो इन डायग्राम। सो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्रिस्टी इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है उसको सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है क्रिस्टी है। Now we show that क्रिस्टी के अलावा भी बहुत सारे लिक्विडियस फॉर्म है वो ऑब्जर्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स राइबोसोम्स इज आल्सो प्रेजेंट। राइबोसोम्स इज प्रोटीन synthesis factory because it is synthesis of protein and DNA is also present in mitochondria. So DNA is present, ribosomes is present. So mitochondria is originate for self originate, वो अपने आप से self originate होता है क्योंकि उसके पास DNA है और ribosomes है. So it is semi autonomous organ or self oriented organ. Now we discuss that all the cristae, all the folded areas have some particles like this. Many particles are observed in cristae area and this is known as oxysomes or F1 particles because it is discovered by Fernandez scientists, so it is known as F1 particles. We show the structure of F1 particles. It is look like that and it is divided into three parts. It is head, it is stalk and it is base.
The length of oxysomes is 10 nanometer. So many numbers of oxysomes are present in folded of crispy portion. The function of oxysome is ATP synthesis of ATP. Synthesis of ATP, because the head portion of the F1 particles have ATPase enzyme, and ATPase enzyme is synthesis of ATP. इसीलिए F1 पार्टिकल्स है वो क्रिस्टी पर प्रेजेंट है और वो एटीपी सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है. इट इज पावर हाउस of the cell. So in examination you have to write down the short note on powerhouse of the cell. So you have to write the mitochondria. अगर ऐसा पूछे कि डिटेल स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया विच सुटेबल डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी वे है कि ये 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि बायोप्लास्ट है. Outer membrane is continuous, inner membrane is discontinuous. Folded like structure is known as cristae, which function is increasing surface area. Besides this, matrix liquidus portion is present, and in matrix ribosomes and DNA are also present. जो क्रिस्टी का पोर्शन है उस पे बहुत ही सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसको F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स पार्टिकल्स कहते हैं, जिसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी. और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड ऑर्गेनल एंड दैट इज लाइसोसोम्स. Lysosomes is a membrane-bound organelles. Lysosomes have many enzymes. Like protease enzyme, lipase enzyme, nuclease enzyme, etc. So protease, lipase, nuclease, carbohydrates, all enzymes are present in lysosomes and it works in acidic pH. अब ये जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, तो कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलेक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड, वो जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट करता है. अब ये जो लाइसोसोम्स है वो ये लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. जब भी ये जो एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच उसमें सबसे ज्यादा होती है, एसिडिक पीएच में वो ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो वर्क करते हैं. अब होता क्या है कि जब ये एंजाइम्स है वो इतनी हाई लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं तो ये जो बैग है ये बैग फट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है और ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो वहाँ उसमें से बाहर निकलकर उनके आजू बाजू के जितने भी ऑर्गेनल्स है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें सारे के सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी है, तो वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स है उसको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं. इसीलिए जो लाइसोसोम्स है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है. इट इज अवर सुसाइडल बैग, क्योंकि अपने आप ही सारे की सारी ऑर्गेनल्स जो हमारे बॉडी की है उसको डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग है वो कहा जाता है. सो अगेन ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कि व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग, गिव द साइंटिफिक रीजंस. सो lysosomes have membrane-bound organelles. It have many enzymes like protease, lipase, nuclease and carbohydrates, and it is work in our macromolecules like carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, etc. ये जो सारे के सारे एंजाइम है वो एसिडिक है, एसिडिक पीएच है उसमें वर्क करते हैं. और ये जो सुसाइडल बैग है उसमें ये सारे के सारे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो सुसाइडल बैग ब्रोकन हो जाती है. ब्रोकन हो जाने से ये जो सारे के सारे एंजाइम है वो वहां से बाहर निकलकर उसके आसपास के जितने भी ऑर्गेनल्स है उसको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग है वो बोला जाता है. इसके अलावा जो हमारा अगली ऑर्गेनल है वो है
साइटोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज स्केलेटन? हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है, बोन से जो बना होता है, उसको हम स्केलेटन्स बोलते हैं। तो जो स्केलेटन्स है, ऐसा ही स्केलेटन्स है वो हमारे सेल में प्रेजेंट है, जिसका फंक्शन क्या है? तो कि ये जो साइटोस्केलेटन है, फर्स्ट इट इज सपोर्ट आवर बॉडी। हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। सेम वे जो साइटोस्केलेटन है, वो साइटोस्केलेटन सेल की जो स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट द सेल, इट इज सपोर्ट द सेल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एंड सेकेंड, और हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो हमें मैकेनिकली सपोर्ट करता है। हमारा जो जितने भी सारे मैकेनिकल फोर्सेस है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेम वे ये जो साइटोस्केलेटन है वो सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। सो सेकंड फंक्शन इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सो it is functions of cytoskeleton. So students, mitochondria, lysosomes and cytoskeleton, ये तीनों के तीनों है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार ध्यान से पढ़े, एक बार लिखे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके स्ट्रक्चर बहुत इजी है ड्रॉ करने का। ड्रॉ कीजिए एक बार, ये जो उसकी डिटेल है वो लिखिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में आंसर है वो लिख पाएंगे। बहुत ही इजी है, ये जो साइंटिफिक रीजन है वो भी बहुत इजी है। सो एक बार ध्यान से हमारे नोट्स को पढ़े, वीडियो को देखें, आप उसका आंसर है वो लिख पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द chloroplast. It is a very much and most important organelles of plant cells, not animal cells, lack of the chloroplast. Students, you know what is our plastid? Plastids is very important for the color formations. Three type of plastids are present: colorless plastids, chromoplastids and chloroplastids. जो कलरलेस प्लास्टिड्स है उसको ल्यूकोप्लास्ट भी बोला जाता है, और जो कलरलेस प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट है, उसका एक ही फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड्स। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें टू टाइप के प्लास्टिड्स है जो कलर फॉर्म्स करते हैं। एक है कैरोटिनॉइड्स जो ऑरेंज कलर फॉर्म करते हैं, और एक जो प्लास्टिड्स है वो है क्लोरोफिल प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ज़ेंथोफिल प्लास्टिड्स भी है जो येलोइश कलर प्रोवाइड्स करते हैं। सो ये जो सारे कलर फॉर्मेशंस है वो प्लास्टिड्स के होने के कारण है। तो ये जो प्लास्टिड्स है उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड प्लास्टिड्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीनिश प्लास्टिड्स, it is greenish color because it have chlorophyll pigment which have already green in color. So chloroplast is greenish in color. ये जो chlorophyll pigment है वो फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है उसके लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. इट इज आउटर मेम्ब्रेन and inner membrane. Outer and inner membrane both are thick and 90 to 100 angstrom in thickness. Its thickness is 90 to 100 angstrom. Now we discuss about the detailed structure of the chloroplast. So in outer membrane we show that it is continuous. The inner structure, the liquidous form is present and it is known as matrix. इनर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जो कि लिक्विडियस फॉर्म है। अब जो ये मैट्रिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं ग्राना और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रामा और स्ट्रोमा दोनों के दोनों मैट्रिक्स के पोर्शन है। ये जो मैट्रिक्स है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन है, वो कई जगह से
जिसको बोलते हैं लैमेली। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज इनवेजिनेटेड एंड फॉर्म द सीरीज लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज लैमेली। ये जो लैमेली है वो फॉर्म होकर थाइलेकॉइड बनाती है। ये जो थाइलेकॉइड है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो इसमें प्रेजेंट है। जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है वो ये जो थाइलेकॉइड है उसमें प्रेजेंट है। अब थाइलेकॉइड के इनर स्ट्रक्चर में देखिए आप, इनर स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकॉइड coin like structure are appearance and it is known as grana। और ये जो हम जो कॉइन देखते हैं एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर जो कॉइन हम लेयर बनाते हैं और जो बंडल फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनम। बंडल ऑफ जो ग्राना है उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो पूरा का पूरा ग्रेनम है वो है थाइलेकॉइड। सो थाइलेकॉइड के इनर स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो ग्राना फॉर्म करता है और कई सारे लेयर फॉर्म होकर बनाते हैं ग्रेनम का स्ट्रक्चर। सो ये जो ग्राना का पोर्शन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रोमा का पोर्शन है, स्ट्रोमा के जो पोर्शन है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बिसाइड्स ग्राना in matrix portion ribosomes are also present. DNA, double stranded DNA is also present. And look, in stroma portion dark reaction enzymes are present। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो दो टाइप की होती है, एक होती है लाइट रिएक्शंस और दूसरी होती है डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस है उसमें सनलाइट है वो रिक्वायरमेंट में सनलाइट इंपॉर्टेंट है, मगर जो डार्क रिएक्शन है उसमें एब्सेंट ऑफ लाइट है उसमें सारी प्रोसेस होती है। तो जो डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स हमको यूजफुल होते हैं वो जो सारे के सारे एंजाइम्स है वो स्ट्रोमा के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा था ग्राना और स्ट्रोमा का पोर्शन। अब ये जो सारे के सारे थाइलेकॉइड्स और ग्रेनम है वो एक दूसरे के साथ हम देख सकते हैं कि अटैच है और ये जो अटैचमेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेलाई। जो स्ट्रोमल लैमेला है उससे एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। फंक्शन देखिए क्लोरोप्लास्ट का, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो मेन फंक्शन है। लाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरोफिल है वो अपना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन्स है वो प्लांट सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनल्स हैव प्रिपेयर्ड देयर इट्स फूड, राइट डाउन इन डिटेल स्ट्रक्चर। सो क्लोरोप्लास्ट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। सो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये उसका डिटेल स्ट्रक्चर है। एक बार ध्यान से इसे ड्रॉ करें। आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में स्ट्रक्चर है वो कंपलसरी ड्रॉ करना है, तो एक बार ध्यान से ड्रॉ कीजिए, एक बार लिखे, डेफिनेटली आप जो आंसर है वो लिख पाएंगे। सो 2 पार्ट्स में जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ग्राना और स्ट्रोमा है। ग्राना है उसमें थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट है जिसमें क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। थाइलेकॉइड के इनर स्ट्रक्चर है वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्राना बोलते हैं, और जो लेयर के फॉर्म में एक ऊपर एक ग्राना है उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लैमेलिस है वो फॉर्म हुए हैं, अरेंज हुए हैं। स्ट्रोमा जो पोर्शन है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। सो ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर था वो क्लोरोप्लास्ट का था। सो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी किया। इसके अलावा
हमने साइटोस्केलेटन जो है उसके बारे में समझा और उसका जो फंक्शन है वो हमने बताया। सो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उसको केयरफुली पढ़े और एक बार वो लिखे, आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।